नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। अमृतसर में क्वींस रोड पर स्थित विक्टोरिया होटल के बाहर गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। आपको बता दें कि लवप्रीत नाम का ये युवक एयरपोर्ट से सवारी लेकर यहां पर छोड़ने के लिए आया था कि यहां पर कुछ युवकों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। युवकों की ओर से इस पर गोली चला दी गई और गोली उसके पैर में लगी है। लवप्रीत का यह कहना है कि युवकों की ओर से उस पर 6 गोलियां चलाई गई, जिसमें से एक उसके पैर में लगी और दूसरी उसके सर को छूते हुए निकल गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जांच की जा रही है। गल कुछ नहीं भाजी, मैं ड्राइवर बंदा एक मैं टेंपो चलाना जी, ठीक है। न्यू मान दफ्तर बस स्टैंड ਉੱਥੋਂ मैं एयरपोर्ट ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਛੱਡਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਜ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੰਚ ਰੋਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਨੀਵੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਲਈ ਭਾਜੀ। ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥੋਂ ਪਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਸਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਤਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਸਬਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਪੈਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ 4 ਜਣੇ ਸੀ, 4-5 ਜਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ? 8-9 8-7-8 ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? 4-5 ਜਣੇ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੌਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਪਛਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸਰ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ, ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਛਿਆ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚੱਲੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰ 5-6 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। 4 ਜਣੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? ਸਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਛੂ ਕੇ ਲੰਗੀ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਕਰ ਕੋਈ ਰਹੀ। ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਇੰਜਰਡ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਈਨਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪੂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਵਾਈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? ਖੈਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣਗੇ। नकोदर में 7 दिसंबर को एक व्यापारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। आज लोगों की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता को खरी खरी सुनाएगी और कहा गया, आप हमारा पुराना पंजाब ही हमें लौटा दें, हमें नहीं चाहिए आपका रंगला पंजाब। आपको बता दें कि गैंगस्टरों ने 7 दिसंबर को थाना सिटी नकोदर के समीप कपड़ा व्यापारी भूपिंदर सिंह उर्फ टिम्मी चावला की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए गनमैन कांस्टेबल मनदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी सुरक्षा करते हुए घायल हुए कांस्टेबल मनदीप सिंह की भी आज मौत हो गई है। मनदीप के क्रॉस फायर से एक शूटर को भी गोली लगी थी। आपको बता दें कि गैंगस्टर रिंदा के नाम से टिम्मी चावला से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, लेकिन उन्होंने यह फिरौती देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आज ट्वीट कर कांस्टेबल मनदीप सिंह की मौत पर शोक जताया और मुख्यमंत्री ने परिवार को सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और इंश्योरेंस की राशि के 1 करोड़ रुपए यानी कि कुल 2 करोड़ रुपए मनदीप के परिवार को देने की घोषणा की है। वहीं जालंधर देहात पुलिस कातिलों की
धरपकड़ के प्रयास में जुटी हुई है। पुलिस को वारदात के दौरान एक सीसीटीवी वीडियो भी मिली है। वारदात में नकोदर के आदर्श नगर में रहने वाले 2 बेटियों के पिता और व्यापारी टिम्मी चावला की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसी को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के विधायक को खरी खरी सुनाई। आके पुੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਯਾਰ ਤੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਕੱਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋੜ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਕੱਟੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚਲੋ ਲਾਲੀ ਚਲੋ ਹਾਈਵੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ सर राती जी फायरिंग हुई आ और एक सिविलियन जोड़ा है उन्होंने मर्डर हो गया और नाल ही नाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਿਮੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ AGTF ਦੇ ਆਫਸਰਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ IG ਸਾਹਿਬ ਔਰ SSPs ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੀਡਸ ਹੈ ਵੀਲ ਫੋਲੋ ਇਟ ਅਪ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂਜ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 407 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਕਵਰਡ ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰੋਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਢਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ लगेगा लेकिन ਮੈਨੂੰ पूरी उम्मीद है कि ये सारे बहुत छेती काबू आएंगे। अमृतसर में पुलिस की ओर से रंजीत एवेन्यू में चल रहे एक स्पा सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। आरोप है कि यहां पर देह व्यापार भी होता था। रंजीत एवेन्यू के D ब्लॉक में द ग्रैंड स्पा सेंटर चल रहा है जो कि अवैध है। यहां पर अवैध तरीके से थाईलैंड से लाई गई लड़कियों को लोगों की स्पा करने के लिए मजबूर किया जाता था। ग्रैंड स्पा का मालिक निखिल भट्टी और मैनेजर लखविंदर सिंह
थाईलैंड से लड़कियों को बुलाते और यहां पर उनसे गलत काम करवाते। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और युवतियों को वापस थाईलैंड भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਸਪਾ ਬੋਡੀ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਿਖਿਲ ਭੱਟੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੈਮ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੋਡੀ ਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੈਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਖਿਲ ਭੱਟੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੈਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਰੋਡਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਅਰੁਣੀ ਡੋਮਕੇਯੂ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਂਕਾਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸਪਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब में पहली बार किसी एसएचओ को अवैध माइनिंग को लेकर सस्पेंड किए जाने की सिफारिश की गई है। यह केस जुड़ा है फिरोजपुर से, जहां पर अवैध माइनिंग के मामले में सरकार और पंजाब पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। फिरोजपुर के एसएसपी और माइनिंग विभाग द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इसके तहत विधानसभा हल्का के गांव को कुहाला थाना मल्लावाला में हो रही अवैध माइनिंग के मामले में थाने के प्रभारी एसएचओ जसविंदर सिंह बराड़ समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा गांव कोहाला से 3 टिप्पर और 1 पोपलाइन बरामद की गई। ये यहां पर गैर कानूनी माइनिंग की जा रही थी। एसएचओ जसविंदर सिंह बराड़ को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसे सस्पेंड करने की सिफारिश भी कर दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब में 2 सरकारें जा चुकी हैं, लेकिन अवैध माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिन पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर अनमोल गगन मान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह खरड़ में हो रही अवैध माइनिंग को लेकर अधिकारियों पर बरस रही थी। सरकार की लगातार फजीहत हो रही थी। पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, वह भी कहते थे अवैध माइनिंग के मामले में जो भी नेता और मंत्री शामिल हैं उन्हीं के शह पर अवैध माइनिंग हो रही है। लोगों को सस्ती रेत दिलाने का वायदा करके ये लोग, आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन फिर भी लोगों को सस्ती रेत नहीं मिली। अब बात करेंगे इसके साथ ही गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा तवज्जो ना मिलने की। अगर पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी के ये नेता अगर ये समझने लगे थे कि उन्हें वहां पर गुजरात में और हिमाचल में भी पंजाब की तरह प्रचंड बहुमत मिलेगा, तो ये उनकी भूल थी। क्योंकि यहां पर अगर समझ लें कि जनता ने आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं जितवाया, बल्कि रिवायती पार्टियों जिनमें कांग्रेस और अकाली भाजपा गठबंधन शामिल था, उन्हें हराया। क्योंकि 30 साल से आरोप लग रहे थे लगातार ये नेता पंजाब को लूट रहे हैं और अपने घर भर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी गुजरात में केवल 5 सीटों पर सिमट गई, जबकि हिमाचल में उनका खाता भी नहीं खुला है। अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने आज लोकसभा में कहा कि किसी भी देश के चेहरे को देखना हो तो खेल उसका देखिए, पता चल जाएगा कि देश कहां खड़ा है। हमारा देश अधिक पदक नहीं जीत रहा है, जो कि चिंता का विषय है। चीन हमसे कहीं अधिक मेडल जीत रहा है, जो कि चिंता का विषय बन रहा है। औजला ने यह भी कहा कि पंजाब में बॉर्डर के पास लगते गांवों में स्टेडियम बनाए जाने चाहिए, ताकि गांवों में अधिक से अधिक खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। मैडम चेयरपर्सन, थैंक यू।
आपने बोलने का मौका दिया है। अंडर 193 सेक्शन में जो स्पोर्ट्स को अच्छा करने के लिए देश में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, किसी भी देश का चेहरा देखना हो तो वो खेल से दिख सकता है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ी स्वर्ण पदक ले रहे हैं, कितने सिल्वर ले रहे हैं, कितने ब्रॉन्ज ले रहे हैं। उससे हम उसकी सेहत और अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी खिलाड़ी अब तक देश में खेल कर पदक ले रहे हैं, वो मेरा मानना है कि जहाँ तो वो बहुत गरीब तबके से आए हुए लोग हैं, जहाँ गांव से आए हुए लोग हैं, जहाँ खेल की मूल सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन हम चर्चा जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर यहाँ करते हैं तो वो ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं इसकी भी प्रशंसा करूँगा कि अपने मंत्री जी जहाँ भी कभी ज़रूरत होती है तो वहाँ पहुँचते भी हैं और काम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब तक आप सही बजट खेलों के लिए नहीं रखोगे, जब तक आप ज़मीन तक जाकर उसकी पनीरी तैयार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो देश में आप स्वर्ण पदक से ऐसे ही दूर रहेंगे। जैसे अभी ओलंपिक में अभी बता रहे थे कितने पदक लिए हैं, 7 पदक आए हैं। और हमारे से जो छोटे छोटे देश है, क्रोएशिया है, वेनेजुएला है, रोमानिया है, वो क्या है, लेकिन उनके पास हमसे ज़्यादा पदक है। 125 करोड़ की आबादी में इतना कम पदक का आना हमें चिंता का विषय है। खेलों में आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि खेलें हमारे देश का, जैसे आप ट्रिलियन इकॉनमी खड़ा करना चाहते हो तो उन कंट्रियों के अगेंस्ट, जैसे अमेरिका है, चाइना है, चाइना ने इस समय 88 मेडल लिए हैं, हमने 7 लिए हैं। तो हमें चिंता करनी चाहिए। ये जो खेलों के आप वेलनेस सेंटर खोल रहे हो, जैसे पंजाब है, पंजाब खिलाड़ियों की धरती थी, महापंजाब की बात करो, हरियाणा में कितने पदक आ रहे हैं, वो भी एक पंजाब का हिस्सा था, अच्छा काम किया। लेकिन पंजाब में भी अच्छा काम होना चाहिए। लंबे समय में हमारी बॉर्डर बेल्ट जो है उसका एक रीज़न है बड़ा, पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान हमें डिस्टर्ब करता है हर समय, कभी ड्रग्स के जरिए, कभी और किसी न किसी तरीके से वो वहाँ माहौल ख़राब करता है। तो हमारी ये आपको विनती है कि आप जितना भी काम करना चाहते हो वहाँ गाँव में आप कम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम खोलिए। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई महाकुंभ होता है, कॉमनवेल्थ होती है, तो कोशिश कीजिए इनको राजधानी से के अलावा प्रदेशों में, रूरल एरिया में लेके जाइए, ताकि वहाँ जब आप एक स्टेडियम बना दोगे, अब मेरा मानना है कि जो स्टेडियम आपने यहाँ बना रखे हैं, सिवाय टूर्नामेंट के कोई भी वहाँ खिलाड़ी नहीं पहुँच पाता। यदि आप यही स्टेडियम हमारे डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में बनाओगे, कहीं फिरोजपुर में बनाओगे, कहीं अलग अलग जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो वो लोगों में जान है, वो लोगों का पास टाइम भी है। आप उनको थोड़ी कोशिश करोगे तो अच्छा रिजल्ट वहाँ से आ सकता है। आप अमृतसर की बात कर लीजिए, मेरा जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 से पहले 13 क्रिकेट प्लेयर नेशनल, वनडे ट्रॉफी और जो इंटरनेशनल मैच होते थे, थ्री डे मैच जो होते थे, उनमें अमृतसर के प्लेयर 1947 से पहले 13 थे। 16 में भी वहां आप जितने भी रणजी ट्रॉफी हुई है, वनडे इंटरनेशनल, IPL में भी अमृतसर के प्लेयर हैं। लेकिन यहाँ जब स्टेडियम की बात आती है तो वो कहाँ बनता है, दिल्ली में बन जाता है, चलो आप यहाँ भी बनाइए, लेकिन वो उसका ध्यान अमृतसर पे क्यों नहीं आपका केंद्रित होता। अब बात करेंगे गुजरात और हिमाचल की। गुजरात में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। यहां पर 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटें मिली हैं। पिछली बार की तुलना में करें तो इस बार 57 सीटें भाजपा को अधिक मिली हैं। कांग्रेस को केवल 17 सीटें मिली हैं, जो कि पिछली बार की तुलना में 60 सीटें कम हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ी थी, यहां पर उसे 5 सीटें मिली हैं। हिमाचल में भाजपा को 25 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई है, वहां पर आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। गुजरात में भाजपा ने 156 सीटें जीती और इसके साथ ही जीत का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। कांग्रेस ने 1995 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। इस जीत के साथ भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में शपथ लेंगे। गुजरात में तो भाजपा में परचम लहराया, लेकिन मोरबी की जीत पार्टी के लिए खास है। मोरबी में पहले फेज में 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव से ठीक 31 दिन पहले 31 अक्टूबर को यहां मच्छू नदी पर
बना फुट ब्रिज टूटने से 143 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर दौरा भी किया था। गुजरात में भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम की सुनामी के अलावा अगर कोई बड़ा कारण है तो वह है पूरे चुनाव को बाहरी बनाम भीतरी करने की भाजपा की नीति कामयाब रही। साथ ही भाजपा ने गुजरात मॉडल के रूप में हिंदुत्व और विकास का ऐसा पैकेज दिया कि लोगों ने इस बार फिर भाजपा को ही चुना। आम आदमी पार्टी ने यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की बजाय सीधे कांग्रेस के वोट को दोफाड़ कर दिया। इस कारण भाजपा ने गुजरात में सीट और वोट दोनों का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार यह कहते थे कि आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें यह बताया है, गुप्त सूचना दी है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन शायद यह भी भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा था, क्योंकि इंटेलिजेंस के अधिकारी अरविंद केजरीवाल को ऐसी बातें क्यों बताने लगे, जबकि यह इंटेलिजेंस सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार के अंडर आती है। इसलिए हो सकता है कि भाजपा की रणनीति रही हो और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इन चुनावों को जीतने में झोंक दी, लेकिन नतीजा उलट रहा। हालांकि इसके बावजूद भले ही आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं गुजरात में, लेकिन उसे नेशनल पार्टी बनने का जो है वो मौका मिल गया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी खुश दिख रहे हैं। उन्होंने जनता को संबोधन भी किया और कहा कि लोगों को बधाई हो, हमें गुजरात में जो वोट मिले हैं उससे आम आदमी पार्टी अब देश में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ज़िंदगी आभारी रहूँगा। आप लोगों का बहुत ऋणी रहूँगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। अब हम बात करेंगे गुजरात में आखिरकार भाजपा को क्यों इस तरह प्रचंड बहुमत मिला, आखिरकार रणनीति क्या रही और भविष्य में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। यहां पर मोदी लहर की सुनामी अगर कहें तो गलत नहीं होगा। मुख्य कारण यह रहा कि लोगों ने बाहरी लोगों को बिल्कुल जो है नकार दिया, क्योंकि यहां से अरविंद केजरीवाल बार बार वहां जाते थे। पंजाब के भी बहुत से मंत्री गुजरात वहां गए थे, लेकिन कोई अधिक चमत्कार नहीं दिखा पाए। कांग्रेस कोई लोकल चेहरा नहीं खड़ा कर पाई और आम आदमी पार्टी के पास केवल अरविंद केजरीवाल ही फेस था। इसलिए पिछली बार से कम वोटिंग के बावजूद भाजपा को ऐतिहासिक वोट मिले और 156 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर दी। 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। गुजराती आज भी मानते हैं कि मोदी गुजरात में ही हैं। गुजरातियों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात आकर कह दिया है तो अब इसके बाद किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। इस बार मोदी ने अहमदाबाद में सबसे लंबा 54 किलोमीटर का रोड शो भी किया, 3 और रोड शो किए, साथ ही 31 सभाएं भी की।
95% इलाकों में यहां पर भाजपा को जीत मिली, लेकिन यह कहना गलत होगा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर है, क्योंकि स्थानीय नेताओं का भी खासा रोल रहा है। भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति इस बार फिर रही हिंदुत्व और विकास के नाम पर वोट मांगा गया। सभी जानते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात से ही शुरू हुई थी। 2002 के गोधरा दंगों के बाद भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे पर 127 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। फिर 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की गई, विकास का नया गुजरात मॉडल बनाया गया। फिर राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 को खत्म कर दिया गया। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल क्यों नहीं चला, यह भी अहम सवाल है। आपको बताते हैं कि बिजली बिल माफ, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और मुफ्त अच्छी शिक्षा आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल का मुख्य हिस्सा रही। गुजरातियों को यह समझाने में भाजपा कामयाब रही कि मुफ्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम मेहनतकश लोग हैं और मेहनत करके ही अपने बच्चों का पेट भरेंगे। अगर बात करेंगे आम आदमी पार्टी के लड़ने से किसको नुकसान हुआ है, तो कांग्रेस को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एंटी इंकुम्बेंसी जो थी, वो वोट शेयर जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस को जाना था, वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच मट गया। लेकिन अगर ये वोट अगर देख लिया जाए कि ये दोनों वोट जोड़ भी लिए जाएं, जितने वोट कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिले हैं, तो भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलता अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव नहीं भी लड़ती तो। कांग्रेस ने पहले दिन से ही यह रणनीति अपना ली थी कि इस बार गांधी परिवार के सदस्य गुजरात प्रचार से दूर रहेंगे। राहुल ने भी एक दिन में सिर्फ 2 ही सभाएं की थी। स्थानीय नेता और लोकल लेवल का प्रचार कांग्रेस की रणनीति थी, लेकिन यह पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। जिस तरह से कांग्रेस को इस बार यहां पर करारी हार मिली है, इससे लगता तो नहीं कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के सामने कहीं खड़ी रह पाएगी। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों की नजर थी वह हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर सीट से भाजपा और कांग्रेस के बीच की टक्कर की थी। जीत कांग्रेस को मिली। यहां से भवानी सिंह पठानिया जीते हैं, उन्हें 32,452 वोट मिले और उनका वोट परसेंटेज 51% से अधिक रहा। दूसरे नंबर पर है भाजपा के उम्मीदवार राकेश पठानिया। यहां पर आपको बता दें कि एक चर्चा हुई थी कि भाजपा से निलंबित पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार, उन्हें एक व्यक्ति का फोन आता है जो यह कहा गया था कि उधर से जो फोन कर रहा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने को लेकर कृपाल परमार को उन्होंने स्टीम लाइन में ला दिया था। उनका एक वीडियो खासा वायरल हुआ था। इसी से पता चलता था कि भाजपा को एक एक सीट पर खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। चुनाव से पहले परमार ने यह आरोप लगाया था कि भाजपा में उनकी उपेक्षा हुई, उनका अपमान किया गया, उन्हें पुलिस केस में फंसाने की कोशिश भी की गई। इन सब आरोपों के साथ कृपाल परमार ने आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है कृपाल परमार का। वह किसी से बात कर रहे होते हैं और कहा जा रहा है जो बात उनसे करने वाले थे वह थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर थे तो उन्होंने यह कहा था कि कृपाल परमार तुम ये सीट मत लड़ो, मैं जो कह रहा हूं उसे मानो, लेकिन कृपाल परमार नहीं माने। अब वह हार चुके हैं, उन्हें 2,794 वोट मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।